Good morning, students. Again, now we come to the experiment number 3, that is to verify the law of combination, that is parallel combination of resistance using a meter bridge. अब हमने parallel combination को क्या करना है, प्रूफ करके बताना है. अगेन अपरेटस की तरफ अगर हम प्रोसीड करेंगे तो सेम अपरेटस की तरफ अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं तो सेम अपरेटस, दैट इज योर 1 मीटर लॉन्ग मीटर ब्रिज. दिस वन एंड इज कनेक्टेड टू द वन वे की. The another end of the one-way key is connected to the battery, and the second end of the battery is connected to the second terminal of the meter bridge. ये similar pattern में experiment हो रहा है, that is you performed in experiment number 1 and in experiment number 2. Now the another connections, these are two wires. This is your wire number 1 and this is your wire number 2. जो मैंने अभी पकड़ी हुई है, this is your wire number 2. एंड द कनेक्टेड वन इज़ वायर नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायर मैंने कनेक्ट की है आप इसकी अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे. देन दिस टू टर्मिनल्स अगेन कनेक्टेड विद द नोन रेजिस्टेंस बॉक्स, जो मैं अभी आपको कनेक्ट करके बताऊँ. ये देखिए मैंने अभी कनेक्शन दे दिया है दोनों इन दोनों को नोन रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ. इसे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द वैल्यूज आर ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर. ऑल द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज. द प्लग विच इज प्लग्ड आउट, दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द सर्किट. नाउ ओनली 1 ohm resistance is connected with the whole circuit. Now the center one terminal is connected with the galvanometer. The intermediate terminal is connected with the galvanometer and the other end of the galvanometer is connected with the jockey again. This first 3 experiments are similar, but in first experiment we calculate only the unknown resistance and its specific resistance. In experiment number 2 we calculate again the unknown resistance of the two wires and prove its series combination. And in this experiment again we take the two unknown resistance wire. Firstly we calculate their resistances and then prove their parallel combination. Okay dear. Now what is parallel combination? Parallel combination is that combination in which both the ends or both the terminals of the unknown resistance wire is directly connected with these two ends. अभी मैंने सिर्फ एक वायर कनेक्ट किया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा वो कॉम्बिनेशन होता है जो ये दूसरी वायर भी है अननोन वायर, ये जो आपको दिख रही है क्लियरली, इस वायर के भी जो दोनों एंड्स हैं एक्सट्रीम एंड्स, वो डायरेक्टली मैं इन्हीं दो एंड्स के साथ प्लग इन करूँगी, इन दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट करूँगी. दैट इज़ नोन एज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सेम प्रोसीजर पे सेम ग्राउंड्स पे हम चलेंगे. पहले मैंने 1 अननोन रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किए हैं. अगेन आप क्या करोगे, की को प्लग इन करोगे दिस, सो डैट द कनेक्शन बिकम्स कंप्लीट. हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. अगेन उसी ग्राउंड्स पे अब हम चल के जॉकी को मैंने इंसर्ट कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, अगेन अपनी जॉकी को स्लाइड करवाएंगे, 1 एंड पे टच करेंगे. Now you see the galvanometer shows maximum deflection. Clear? Now again you slide the jockey. Now you again slide the now अगर अब मैं जॉकी को एक एंड पे टच करवाऊंगी, this one, the galvanometer shows maximum deflection. Start sliding the jockey till the galvanometer shows 0 reading. Now the galvanometer shows 0 reading. The reading shown by the jockey is 26.9. देख लीजिए 26.9, 27 से बेटा एक स्टेप पीछे है, that is 26.9. So I write over here, resistance box से मैंने resistance निकाली है 1 ohm. So the length is 26.9. What is 100 minus L1? That is 100 minus 26.9. So the unknown resistance is 1. The value of R is 1. 100 minus L1 is 100 minus 26 by 9 whole divided by 26 by 9. आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी unknown resistance निकल जाएगी of this wire. Again, now replace this wire with the another wire.
आप इस वायर को हटा के अब इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम। नाउ सी, आई एम कनेक्टिंग द अनदर वायर। दिस इज़ योर वायर नंबर 2 जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ही मैंने वायर नंबर 2 को कनेक्ट किया, अगेन मैं जॉकी को एक्सट्रीम एंड पे टच करूँगी। गल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। नाउ स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी till the galvanometer shows 0 deflection. Now it starts moving slowly so that I come to the exact value. Now the galvanometer shows 0 deflection. Now the reading is 30 से बेटा आप एक स्टेप पीछे हो, so it comes out to be 29.9. So the reading is second wire, wire number 2, 29.9. अगेन बेटा मैंने 1 ohm सी रेजिस्टेंस प्लग आउट की थी, चेक कर सकते हो आप अप्रेटिस में। फॉर वायर नंबर 2 द वैल्यू इज दिस वन। दिस कम्स आउट टू बी 100 minus 29.9. नाउ द x2, दिस इज x1, दिस इज x2, unknown resistance of the second wire. So it comes out to be 1 into 100 minus 29.9 divided by 29.9. This is the second wire whose resistance is calculated. Now अब हम क्या करेंगे, दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे. Now your step number 3. Both the wires are connected. Both the wires are connected in parallel combination. बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है जिसके जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं उन दोनों एक्सट्रीम एंड्स को डायरेक्टली आप वायर को अटैच करोगे. एंड टू एंड अटैचमेंट नहीं होगा, आपको एंड टू एंड अटैचमेंट नज़र नहीं आएगा. अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन अटैचमेंट दिखाऊंगी. देखिए एक वायर मैंने ऑलरेडी अटैच की हुई है. सेकेंड वायर में जब अटैच करूंगी आप देखिएगा सेकेंड वायर किस तरीके से अटैच की जाती है. इस सेकेंड वायर को जब मैं अटैच करूंगी दैट इज़ नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखिए अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ. फर्स्ट वायर इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड, बेटा आपको दिख रहा है वीडियो में. सेकेंड वायर को जब मैं कनेक्ट करूँगी सेकेंड वायर को अब मैं कनेक्ट करने लगी हूँ. तो सेकेंड वायर जब कनेक्ट हो रही है, सेकेंड वायर जब कनेक्ट हो रही है, ये देखिए ये इसका सेकेंड टर्मिनल है. दिस वन, ये दिख रहा है आपको इसका सेकेंड टर्मिनल. इसको डायरेक्टली अब मैं इसके साथ अटैच करूँगी. अब डायरेक्टली जब मैं इसके साथ अटैच करने लगूँगी, देखिए इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया. कनेक्शन को टाइट कर देते हैं. अब आप ध्यान से देखिए, देखिए ये जो वायर है दिस इज़ योर वायर नंबर 1. इसको भी डायरेक्टली मैंने इन्हीं दो टर्मिनल्स से अटैच किया है. अब इस वायर को मैं साइड पे कर रही हूँ. दिस इज़ योर वायर नंबर 2. इसे भी डायरेक्टली मैंने इसी दो टर्मिनल्स का अटैच किया है. दिस इज़ नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स. अब इनको पैरेलली अब आपने कनेक्ट कर लिए. सिमिलर वही दो वायर्स थे जिनको पहले मैंने इंडिविजुअली कनेक्ट किया था. अब इन दोनों वायर्स को आपने पैरेलली कनेक्ट कर लिया है. अगेन अब आप रीडिंग लोगे. अगेन मैंने रीडिंग लेने के लिए क्या किया है, अगेन मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ohm रेजिस्टेंस बाहर प्लग आउट कर दी है. अब मैं अगेन रीडिंग लूँगी. जब ये पैरेलली कनेक्टेड हैं मैं 1 end पे टच कर रही हूँ. नाउ अभी आप पहले देख लिए विदाउट एनी टचिंग, अभी मैंने टच नहीं किया है. galvanometer shows 0 deflection. When it touches
वायर, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर, इट शोज मैक्सिमम रीडिंग, जो आपको गैल्वेनोमीटर में नजर आ रहा है. क्लियर? नाउ अगेन स्टार्ट स्लाइडिंग. देखिए मैंने जैसे ही टच किया वो मैक्सिमम रीडिंग दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, ये आपको दिख रहा है. मैं जॉकी को स्लाइड करते जाऊंगी वायर पे स्लोली स्लोली, सो डैट मुझे एग्जैक्ट रीडिंग गैल्वेनोमीटर पे नजर आए. आप गैल्वेनोमीटर पे देखते चलिए, गैल्वेनोमीटर की अभी रीडिंग 0 नहीं है. दिस इज योर 0 मार्क. तो जैसे ही मैं आगे गई, दिस इज एग्जैक्टली 0. अब मैं एग्जैक्ट 0 पे आ गई हूँ. अब मैं आपको रीडिंग की तरफ फोकस करूंगी. तो रीडिंग की तरफ अगर आप फोकस करें तो आपको दिख रहा है योर वैल्यू कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखिए, ये देखिए आपकी वैल्यू, दिस इज 17, दिस इज 17.5. तो आप जॉकी का जो पेन की टिप है वो यहाँ रेस्ट पर आई है, this one reading. So which one is the line? This is 17.5, 17.6, 17.7, 17.8. So the reading is 17.8. तो आपकी रीडिंग कितनी आ गई? 17.8 आ गई. अब आप रीडिंग की तरफ फोकस करें. रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने रेजिस्टेंस निकाली थी अगेन 1 ohm व्हेन बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेंथ आई थी 17.8. आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 17.8. अगेन आप x निकाल लोगे पैरेलल, जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. नाउ इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 100 माइनस 17.8 डिवाइडेड बाय 17.8. बेटा मैं इसको नाम x दे देती हूँ, इसे y नाम दे देती हूँ, इसे z नाम दे देती हूँ. नाउ अब आपको प्रूफ करके बताना है. आप प्रैक्टिकल फाइल में ये लिखेंगे. थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था, थ्योरेटिकली वी नो दैट जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है देन द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल लोगे और सभी रेजिस्टेंसेस को एड अप करोगे. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी x, द सेकेंड कम्स आउट टू बी y. सो अगर मुझे इन दोनों का पैरेलल में अगर मैंने कनेक्ट किया है तो मेरा रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए? दैट इज कम्स आउट टू बी 1/x प्लस 1/y. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे से इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/p. 1 आपने इसको सॉल्व किया, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी p. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट आपको तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया, इसको अगेन रेसिप्रोकल करेंगे. सो p पैरेलल की वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स आएगी z वैल्यू के बराबर. दिस इज द z वैल्यू. तो प्रूफ कर लिया हमने एक्सपेरिमेंटली. अगर दो वायर्स आपने पैरेलली कनेक्ट की थी तो उसकी वैल्यू, पैरेलल कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंडिविजुअली कनेक्ट करने से, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से अगेन वैल्यू सेम आती है. नाउ स्टूडेंट्स केयरफुली आप देख लीजिए. आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे आपने सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस निकाली और स्क्रू गॉज की हेल्प से आपने रेडियस डिटरमाइन किया और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताई. इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेम ग्राउंड्स पे हमने सिमिलर ग्राउंड्स पे एक्सपेरिमेंट किया. देन वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 अननोन वायर्स and then the 2 wires are connected in series and then we calculate the total resistance and we prove it theoretically as well as practically. When the 2 wires or more than 2 wires are connected in series attachment, that is end to end attachment, then the overall resistance is actually the sum of, वो sum है आपका individual resistance का. And in this experiment, experiment number 3, we calculate the resistances of the 2 or more than 2 wires when they are connected in parallel combination. In parallel combination, what is parallel combination? It is simply when the resistances of the unknown wires are directly connected to the extreme ends, extreme terminals. This one, these are 2 extreme terminals. Both the wires are directly connected to these 2 terminals. Such combination is known as parallel combination. In parallel combination, firstly we calculate the resistance of first wire by removing the second one wire. Then we remove the first wire and then calculate the resistance of second wire. In last, we
connect both the wires in parallel form and then calculate the resistance. Then we prove it in the theoretical manner. When both the wires are connected individually, then their overall resistance in parallel is the reciprocal. तो हमने reciprocal लिया, तो reciprocal करके अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, बेटा यहाँ मैंने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से आपको आ जाएगा 1/p. मैंने जनरल टर्म लिखी है, दैट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो व्हाट इज़ द पैरेलल रेजिस्टेंस? अगेन इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दिस इज द पैरेलल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल. सो P पैरेलल इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एग्जैक्ट वही आएगी जब आपने प्रैक्टिकली कंबाइन किए थे उसकी वैल्यू जो आई थी, दैट इज Z. अप्रॉक्सीमेटली बेटा हार्डली पॉइंट्स में डिफरेंस आता है. अगर मान लो यहाँ वैल्यू आपकी 1.25 आ रही है तो हो सकता है यहाँ वैल्यू आपकी 1.19 आए. दैट इज़ अ स्मॉल एरर. अगर स्मॉल एरर है दैट इज़ टू बी करेक्टेड. मे बी द एरर ड्यू टू द negligence of the observer or due to the carelessness of the observer. आपने रीडिंग करेक्टली ना ली हो, 1 और 2 पॉइंट्स में थोड़ा गैप रह गया हो. कनेक्शन शुड बी टाइटली कनेक्टेड. अगर आपने कनेक्शन टाइटली कनेक्ट नहीं किए हैं तब भी आपकी रीडिंग में थोड़ा गैप आ जाता है. सो देर आपका जो रीडिंग है, जो यहाँ रीडिंग आएगी कॉम्बिनेशन करके, रेसिप्रोकल करके, और जो आपने एक्सपेरिमेंटली यहाँ प्रूव किया है, ये दोनों वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली आपस में क्या आती हैं, सेम आती हैं. If you carefully do the experiment, then there is zero error during the experiment. Thank you, students.